Okay, so let's start with if else. So if else is very simple. You let's suppose I have an age. Okay, so I have, let's say age is equal to, let's say 5. Okay, so I have this age. Now what I want is I want to categorize the person based on the age. Okay, so I want to categorize in 4 ways. Okay, so let's see. So first let us categorize in, let's say child or not child. Okay, so I have this category, whether the age, based on the age, whether it is he's or he or she is a child or not a child. Okay, so the criteria that I'm going to use is if he's less than 10. Okay, so up to 10 he is a child, and above 10 he is not a child. Okay, so let's see how to do it. Okay, so for that we will use, whenever there is such kind of a condition, uh, I mean, uh, it is not a fixed print. Okay, so it is not fixed that it is always child or it is always not child. Okay, so the condition will change based on what is the value of age. Okay, so like right now the age we are taking as static. Okay, so we can take this as input. Okay, so that way, every time we run the program we can enter a different value. Okay, and obviously because this is age, this has to be int, right? So but input gives me string, so what I will do is I will convert that to int. ओके, तो ये हो गया मेरा इनपुट का पार्ट. सो उस अब एज आ गया. अब एज को मुझे रीड करना है एंड उसको कैटेगराइज करना है whether he is a child or not child. Okay, so for that I will be using if statement. Okay, so if I use if, so if the way we use if is we write if, then space, and then a condition. Okay, so this condition should be any expression which will result in a true or a false. Okay, so this condition has to be such that the the result of the expression should be either true or false. Okay, so if it is true, so let me put expression, let's say true. Okay, तो मैं purposefully यहाँ पे true कर रहा हूँ. Okay, so this means what, this if loop will be valid. Okay, so this if loop will be valid, if statement will be valid. Now let us see if I press enter. Okay, so you can see when I press enter it doesn't come below here, it comes below here, right? So this is called as indentation. Okay, so this particular thing is called as indentation. And whenever there is a block, okay, so when do I say there is a block, so this colon, okay, so this colon says that there is a new block that is going to start. Okay, so whenever there is a new block that is going to start, you have to indent it once. Okay, so whichever is the so see this is the colon, right? So where is the this particular statement starting? It is starting at this particular location, right? So you have to come down and then press tab once. Okay, so that will bring you to the block of this if. Okay, so now you are inside if statement. Okay, so let me now print something. So print, let's say child. Okay, so let's say child. Okay, so when I do this now, when I purposefully say it is true, that means what, this if condition is always true. Okay, so it doesn't make any sense. So ऐसे लिखने से अच्छा होता कि मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं, right? Direct print ही लिख दूं, right? But just to show you how this if statement works, so here there should be an expression, not true. Okay, so this is not what we want. So here we want an expression. Now what expressions can I do? I cannot do this. Okay, so I cannot do this. Why? Because this is not going to result in a true or false. Okay, so I don't want to use this.
then what do I want to use? I want to use any operation by which the output of it will be either true or false. Like, so if I can do age equal to let's say 56. Okay, so now this equal to, you know what this equal to means, right? So equal to means when both the things, that is left and right, are equal, right? So if they are equal, you will get true. If they are not equal, you will get false. Okay, so that is what this operator does. Okay, so such like that, there are a lot of different operators that you can use, which will give you a output as true or false. Okay, so any such operator will do. Like for example, this is one operator that you can use. You can use this. Okay, so is age greater than 56, right? Then you can use this, less than 56, right? You can use less than equal to or greater than equal to, right? So all these things you can use. You can also use not equal to. Okay, so not equal to means age is not equal to 56, so you, this also you can use. So all these things results in an output which is either true or false. Okay, so this particular statement will give you either true or false based on the value of age. Okay, so now you have to decide what expression should go over here. Okay, so right now our aim is what? If he's below 10, then I am going to say child. If it is above 10, then I'm going to say he is not child. Okay, so let's see how to handle that. So let's say age, if he is less than or equal to 10. Okay, so I'm going to use this condition. So if age is less than or equal to 10, then I'm going to print child. Okay, so let's see what happens. So let's run this out. And okay, so now it is waiting for something. Okay, so let's say mm, 34. So I enter 34, and if I print, you see I don't get any output. Okay, so let's run it again, and let's say 7, and this time I get child. Okay, so that is perfectly working. Right now I don't get anything when I put anything above 10 is because I don't have a else statement. Okay, so now what is happening is, so if this condition is false, okay, so if this condition is true, I print child. But what to do if it is false, right? So that I have not yet mentioned. Okay, so for that, if you want to mention that, you have to come to the same level of this if. Okay, so you cannot come over here and put else. Okay, so that will be wrong. Okay, so you can see it is giving me error. Okay, so obviously I cannot do this, right? So this will give you an error, but you have to start at the same level as this if, and then write it over here. Okay, so once that is done, now you can press enter, right? So when you press enter, you can see again that block is coming at this particular location. Okay, so I have started a new block. Okay, so a colon means a new block is started. Okay, so now here I can write print not child. Okay, so let's run this again. So it is waiting for some input. So let's say 33. If I press enter, you can see I get not child. Okay, and if I put, let's say 2, you can get, I'm getting child. Okay, so this is how you write an if and an else statement. Okay, so this is fine. Now what I want is, I want a slightly different approach. So I have a few more options. Okay, so I have child, I have young, and let's say sorry. Okay, so I have now few more
categories. Okay, so the categories are child, teenage, adult, and old. Okay, so if the age is less than 10, it is going to be child. If it is less than 20, teenager. Less than 40, then adult. Okay, and above that is going to be old. Okay, so I want to write a program to do this. Okay, so I'm going to enter age and I have to filter it out based on this. Okay, so whenever such multiple conditions are there, you have an option for either nesting of if else, or you have another option called else if ladder. Okay, so now it is completely up to you which one to use. Both will do the same job but in a different manner. Okay, so let's first see the nesting part and then we will look at the else if ladder part. Okay, so now let's analyze this program a little bit. So if age is less than equal to 10, okay, so if age is less than equal to 10, I am printing child. Okay, so is it possible that I can subdivide this into smaller part? Age less than equal to 10 को मैं और छोटा कर सकता हूँ. एज लेस देन इक्वल टू 10 को मैं और छोटा कहां से करूं? मतलब the minimum है वो child है, right? So child is less than 10, right? So that this is perfect, right? तो ये मेरा पहला कंडीशन ठीक है. बट एल्स में देखो क्या हो रहा है. एल्स में बाकी सब चीजें एल्स में आ रहे, right? So here what I'm going to do is I'm going to remove this print command and here I'm going to start a new if. Okay, so here I'm going to start a new if. Okay, so you can see how I'm starting a new if. So I'm starting a new if from inside the block. Okay, so I'm starting the new if inside the else block. Okay, so इधर मैंने if start किया और इधर मैं क्या करूंगा? Age less than equal to, what is the next age? 20. Okay, so if the age is less than equal to 20, then I'm going to print teenage. Perfect. Okay, so now here I'm going to do else, right? And here I'm going to think again. Now what else do I have? So now यहाँ तक भी ठीक है, right? 20 के नीचे है तो teenage है, right? बट अभी मेरे पास और क्या ऑप्शन है एल्स में? एल्स में अभी और दो ऑप्शन बचा है, राइट? सो व्हेन एवर देयर आर मोर ऑप्शंस लेफ्ट, आई शुड अगेन स्टार्ट अ न्यू इफ स्टेटमेंट. ओके, बिकॉज देखो पहला कंडीशन क्या था. अब आप जब भी आप इफ एल्स यूज करते हो ना, तो उसको दो दो में डिवाइड करना सीखो, राइट? सो दिस इज, आई हैव 4 कंडीशंस, राइट? तो मैंने क्या किया, पहला कंडीशन इफ में डाला, बाकी सब एल्स में गए, राइट? ऐसा हुआ यहाँ पे, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट इफ एल्स में पहला कंडीशन इफ में आया और बाकी सब एल्स में गया, राइट? अब नेक्स्ट इफ में पहला कंडीशन इफ में आएगा और बाकी सब एल्स में आएगा, ठीक है? और उसके आगे कुछ है ही नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? So that means right now I'm over here, so I have to have another if which will print for adult. Okay, so let's do print, sorry, I have to start a new if where age is less than or equal to, let's say, 40, right? So 40 means the person is adult, and else I should write print person is old. Okay, so you can see the way I have written the code, right? So it is going in a horizontal manner. Okay, so it is increasing in this direction. Okay, so it is increasing in the horizontal direction. So in the first case, if else में एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, सेकंड इफ एल्स में दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, टीनेजर वाला, एंड थर्ड में
दोनों कंडीशन, लास्ट के दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, ठीक है. So let's run it and find out if this works. So if I run this, age, let's say 22. Okay, so if I put 22, what will I print? What do I print? Adult. It should print adult. Okay, so let's see whether it really prints adult or not. Okay, so first, age compares with 10. Okay, so is age less than 10? No, right? So this will not execute and it will come inside else. Okay, so else में वो दिखेगा वापिस से और एक if है. So again, age is less than 20. Is it less than 20? No. So again, it is 22. So 22 is not less than 20, right? So again, this if will not execute and it will come over here. Okay. So in this if it will come. Okay. So in this if I am saying is age less than 40. So you can see 22 is less than 40, right? So perfect. So now this will get printed, right? And whenever this gets printed, so whenever there is an if and an else, only one of them can be executed. Okay, so you cannot execute both of them, right? So if the condition is satisfied, then the if will be executed. If the condition is not satisfied, the else will be executed. Okay, so this is very important to understand. So let me show you another way of the same thing. Okay, so let's now one more thing I forgot. So let's say age is less than equal to 20. Okay, so let's take an example of this. Let's print okay. So now I have three statements inside if. Okay, so let me just temporarily comment this out. Okay, so I've commented this out. Now I want to execute this, right? So what do you think? How many statements will get executed? Will hello be executed? Let me just make this true. Okay, so I don't want, let me comment this out also. Okay, so I am purposefully executing the if statement. Okay, so if true, मैंने true कर दिया. Okay, मैंने खुद जानबूझ के ये statement को true कर दिया. Okay, so to show you a very specific thing. Okay, so let me show run this and show it to you. So if I, let me stop this. Yeah, so now if I run this, you can see I get hello world and okay. Okay, so that means what? So whenever you have the same indentation, okay, so same indentation, that means you are inside the same block. Okay, so you are inside the same block. So whatever you write inside this particular block with the same indentation, they all will be executed uh, when the condition is true. Okay, so that is what this means. Okay, now uh, now let's see what happens when I do this. Okay, so when I do this, what statement is under if statement? Okay, so what line is under if statement and what line is not under if statement? Yes, is the second line under if? No. No, because it is indented and it is starting at the same level as if. Okay, so अगर ये same level में है तो वो if के अंदर अंदर के ब्लॉक में नहीं है. ओके, अगर if के अंदर के ब्लॉक में चाहिए तो you have to press a tab and now it is inside the if statement. Okay, so now it is a part of if, not the main program. Okay, so that is very important to understand what this is. Okay, so ये indentation बहुत important है. ठीक है, तो ये हो गया. Now if I make this false,
if I make this false, will these two statements execute? No, right? But this will execute. Okay, why? Because this is not related to the if statement. ये if से कोई लेना देना है ही नहीं, because ये अलग से है, right? So if I run this, you can see I get okay, right? So that is the important thing about understanding how this if statement blocks work. Okay, so ये block समझना बहुत important है, right? Now let me take another example. Now, can you tell me which block is under if now? Only hello. Only hello. Very good. Okay. So now here in this case, only hello is inside the if block. Okay. Now, even though this statement has the same indentation as the block, it doesn't matter because उसके ऊपर वाला line बाहर आ चुका है, राइट? मतलब वो उसके अलग आ चुका है. तो एक बार कोई भी एक लाइन बाहर आ गया, देन उसके नीचे के सारे लाइन वही सेम लेवल में आने चाहिए. ओके, सो यू कैन सी, अगर मैं इसको इधर करता हूं तो वो एरर देता है. कैन यू सी? सो देयर इज एन एरर. So I cannot have that. Okay, so that is one thing to remember. So if you have multiple statements in your if command, you cannot you should not have, if you want to be inside if, then you should always add a tab. Okay, and this tab should be such that there is uh, no statement which is not having any tab. Okay, so ऐसा करना allowed नहीं है. ठीक है, ऐसा करोगे तो वो ये जो प्रिंट कमांड है वो if के अंदर नहीं आएगा. ठीक है. Okay, so that is about the blocks. So now we have seen nested if else. Okay, so nested if else मतलब if के अंदर if else. Okay, if के else के अंदर if else के अंदर if else ऐसा बोल जब करते हैं तब उसको बोलते हैं nested if else. Okay, so you can see either over here और इन दी एल्स, कहीं भी डाल सकते हो. ओके, सो नेस्टिंग आप कहीं भी कर सकते हो. इफ के अंदर भी कर सकते हो, एल्स के अंदर भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे क्या किया है, एल्स के अंदर किया है. ठीक है, तो नेक्स्ट इफ एल्स मैंने एल्स के अंदर किया है. अब यही चीज इधर भी कर सकते हो, इफ में भी कर सकते हो. इट इज कंप्लीटली अप टू यू, बट दिस कंडीशंस विल चेंज. ओके, सो दिस कंडीशंस हैव टू बी चेंज. आपको उल्टा चालू करना पड़ेगा. उल्टा कैसे चालू करोगे? यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेटर देन 40. okay, so that will be your मतलब ऐसे कि सॉरी ग्रेटर देन 40 नहीं, एज आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, सो एज आपको करना पड़ेगा ग्रेटर देन 10. ओके, सो इफ आई डू एज ग्रेटर देन 10 मतलब क्या, अब ये इफ एल्स जो है वो किधर आएगा, नेस्टिंग कहां पे करना पड़ेगा. So let me just undo because I don't want to remove this code. So let me come down and show it to you in a separate line. Okay, so if I want to go reverse, okay, so if age is greater than 10, if age is greater than 10, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? एज अगर 10 से ज्यादा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? Teenager, adult, and old. हाँ, मतलब अगर ग्रेटर देन 10 है तो टीनेज हो सकता है, अडल्ट हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट इफ डालना है, राइट? तो वो हम लोग डालते हैं, बट उससे पहले एल्स लिख लेते हैं. ठीक है, इफ एज इज नॉट लेस ग्रेटर देन 10. ओके, सो इफ मतलब एल्स मतलब क्या हो गया, एज इज नॉट ग्रेटर देन 10, राइट? सो उस केस में हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करेंगे Child. प्रिंट चाइल्ड. वेरी गुड. ओके, बट इस अभी यहाँ पे एज ग्रेटर देन 10 में देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. ही कैन बी टीनेजर, ही कैन बी अडल्ट, ही कैन बी ओल्ड, राइट?
तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इफ एल्स डालना पड़ेगा. सो इफ नाउ एज is greater than 20, next condition. Okay, so if age is greater than 20, let's see, so greater than 20 hai, to again I have two options. Okay, so he can be either adult or old. Okay, so again I will have another if statement over here, or else. else में तो एक ही ऑप्शन है, मतलब एज लेस देन 20 है, राइट. ग्रेटर देन 20 नहीं है तो लेस देन 20 है, एंड लेस देन 20 में तो आपको पता है क्या है, टीनेज है, राइट. सो आई विल बी प्रिंटिंग टीनेज. ओके, और अब इस इफ में अगेन आई हैव टू ऑप्शंस, राइट. सो डायरेक्टली लास्ट वाला इफ आएगा यहाँ पे. सो इफ एज greater than 40. Okay, so if the age is greater than 40, then we know what is the answer. Okay, so greater than 40 hai to old hai, right. So I will simply come over here and print old, and else I'm going to print kya hai, adult. ओके, सो ये देखो, ये वाला इफ देखो, दोनों नेस्टेड इफ एल्स है, दोनों नेस्टेड इफ एल्स है, बट कहां पे नेस्टिंग किया है वही डिफरेंस है. इस वाले इफ में मैंने एल्स पार्ट में नेस्टिंग किया है. ओके, सो नेक्स्ट एल्स पार्ट में मैंने नेक्स्ट इफ एल्स चालू किया है, एल्स पार्ट में मैंने नेक्स्ट इफ एल्स चालू किया है, राइट. सो दिस इज द वे. ओके, सो ये कौन सा यूज करना है वो ये कंडीशन के ऊपर आता है, राइट. ये वाला देखो, इसके अंदर मैंने अगेन इट इज द सेम एग्जैक्ट लॉजिक, बट इस केस में मैंने इफ के अंदर नेस्टिंग किया है, नॉट एल्स. ओके, सो इफ के अंदर नेस्टिंग किया है तो ऐसा आता है, राइट. सो दोनों एग्जैक्टली करेक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग. विच एवर लॉजिक सूट्स यू, यू कैन यूज दैट. ओके, सो फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है. एंड लेट्स कम डाउन and let me show you the last one, that is else if ladder. Okay, so now we are going to do the same thing but using else if ladder. Okay, and you may like this method more than the current method because this is a bit more, too much nesting creates complicated code. Okay, but else if ladder creates those same thing easier. Okay, so let me show you. So first of all, let me do if. Okay, and if let's say age is less than equal to 10. So this is very simple. If it is less than equal to 10, I'm just simply going to print child. Okay, so that was simple. Okay, child. Okay, now is the second part where the age is the next condition. Okay, so next condition, normally मैं यहाँ पे else डालूंगा, but if you have such multiple conditions that you want to check, then Python gives you another option that is called as the else if. Okay, so you can do else if, and you can start another condition over here. Age is less than equal to 20. Here you can say print something. Okay, and let me put it a few more times. Okay, so I have written down a few more entries. So I'm going to say teenage, and this is going to be adult, and this is going to be old. Okay, so ये देखो क्या हो गया, ठीक है. ये सेम चीज मैंने इंप्लीमेंट किया है बट यूजिंग else if ladder. ओके, सो else if ladder में देखो क्या होता है. You start with some condition. Okay, then else if next condition, then again else if next condition, and again at the end obviously the last one should be else. Okay, so last one, ऐसा जरूरी नहीं है कि last one else ही होना चाहिए. You can have another else if also,
and completely forget about else, that is also fine. It is completely up to you. But normally हम लोग else लगाते हैं. ठीक है. So you can look at this code and this code. ठीक है. And clearly this is a little bit more complicated than this. Okay, so normally if there are such condition, multiple conditions you want to check, I normally prefer using else if ladder. Okay, so that solves the problem. So you can obviously see this is much more cleaner looking. Okay, whereas this ये nesting के वजह से ना थोड़ा सा complicated दिखता है, right? Let's go to task. Okay, so let's come to the task number 10. So task number 10 is wap to read, write a program to read a integer and print if the number is even or odd. Okay, simple program. आप लोग को पता रहेगा even odd कैसे करते हैं. Task number 11. Okay, task number 11 is a little bit complicated. It is based on nested if else. Okay, so it's a very popular program. Normally हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो ये प्रोग्राम आता ही है. Okay, so very simple. Write a program to check if the entered year is a leap year or not. Okay, so basically you have to take an input. यूजर से इनपुट लोगे और आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वो पर्टिकुलर जो चीज है वो लीप ईयर है कि नहीं, बस. ओके, सो बेसिकली सैंपल मैंने दिया हुआ है. सो मैंने 2000 एंटर किया. ओके, सो यू शुड से 2000 इज अ लीप ईयर. ओके, सो दिस शुड बी द आउटपुट. ओके, और ये जो इनपुट है वो चेंज होते रहेगा. ठीक है, तो वो आपको मूडल करके दिखाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने और एक सैंपल दिया है 1999. ओके, 1999 दिया मैंने, तो 1999 इज नॉट अ लीप ईयर, ऐसा प्रिंट होके आना चाहिए. ओके, नाउ लीप ईयर इज नॉट दैट straightforward to find out. Okay, so for finding out leap year there are certain conditions that you need to check. Okay, so that is why this is based on nested if else. Okay, so you can see the first condition. If the year is evenly divisible by 4 means having no remainder, मतलब 4 से divisible है, then go to next step. Okay, go to next step मतलब step number 2, that means ये वाला next step पे जाना है, right? अगर divisible है तो, अगर नहीं divisible है तो directly you can say it is not a leap year. Okay, so this is one thing that you have to understand. सिर्फ 4 से divide हुआ मतलब leap year है ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो पहला चीज क्या करोगे आप, पहला चीज क्या चेक करोगे, इज इट डिविजिबल बाय 4. इफ इट इज डिविजिबल देन आई हैव टू गो टू स्टेप 2, मतलब वो जो पहला इफ है उसी के अंदर अपने को और एक इफ आएगा आगे. ठीक है, अगर डिविजिबल है ही नहीं 4 से तो डेफिनेटली यू कैन से इट इज नॉट अ लीप ईयर. ओके, सो दैट इज वन थिंग. तो एल्स पार्ट में नॉट अ लीप ईयर डालोगे. ओके, नाउ लेट अस कम इनसाइड इफ एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन. Okay, so if the year is divisible by 4, that means if wala condition, if it is divisible by 4 but not by 100. Okay, so that means अब आपको और एक if में चेक करना है कि is the number divisible by 100. Okay, 4 से divisible है, अब 100 से भी divisible है क्या वो चेक करना है. ठीक है, अगर 100 से भी divisible है, sorry 100 से divisible नहीं है, then I can say it is a leap year. Okay, like for example, so if here is divisible by 4 मतलब पहला if, then not by 100 मतलब 100 से divisible नहीं है, only then I can say it is a leap year. मतलब 4 से divisible होना चाहिए, 100 से divisible नहीं होना चाहिए, तब मैं उसको leap year कहूंगा, राइट? और अगर समझो, ठीक है, 4 से डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है, ऐसा समझो. ठीक है, तो 4 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है, देन यू हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप. यू कैन सी इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 100. ठीक है, बोथ 4 एंड 100 से डिविजिबल है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज और एक चीज चेक करना है.
अगर दोनों से डिविजिबल है 4 and 100 से, then 400 से तो होना ही नहीं चाहिए. Okay, so you can see this. So year is divisible by 100 but not by 400. Okay, that means what? अभी फाइनल क्या क्या चेक करना है? पहले तो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं है तो लीप ईयर नहीं है. ठीक है, अगर है तो बहुत सारे कंडीशन चेक करने पड़ेंगे. ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो पहले चेक करो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, 100 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर है. ठीक है, बट अगर 4 से भी डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है, देन 400 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट this thing is. Okay, so first of all I have to get the year, right? So let's say y is equal to, I want to take input, right? And I want to convert it into integer. Okay, so now once that is done, now I have to start my if, right? So let's check the conditions. So let's go to description and see. So first, if it is divisible by 4 means, if it is divisible by 4, then I have to go to step 2. If it is not, then it is not a leap year. Okay, so the first condition would be if y mod 4 is equal to 0. Okay, that means if it is divisible, then there will be further conditions. Okay, if it is not divisible, else, then I can simply say print what was the statement that I have to type? Yeah, so this should be like this. Okay, so the year should come over here, is not a leap year. So to put the year over here, I will just put F, and then over here I will say curly braces Y. Okay, so that should run this. Okay, now if I want to run this code right now, will this code run? Okay, will this code execute? Can anybody tell me? मतलब आधा अधूरा ही सही, कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? No. Why no? Okay, so this code will not run because you in Python you cannot have a empty block. Okay, you cannot have a empty block. Okay, so you can see there are two blocks currently. Whenever there is a colon, you should understand that below that there is a block. Okay, so you can see after else there is a colon, so below that there is a block and it is not empty. Okay, so there is one print command. Look at it over here, there is a colon for the if, and below that there is nothing. There is no expression, no print command, no input, nothing is there, right? So this is empty. So this if, the block of if is empty. So in Python you cannot have an empty block. That is the rule. Okay, so that is the reason why this program will not run. Okay, but let's suppose if you want to run it, then if you want to have an empty block, you can use pass. Okay, so whenever you want to have an empty block, you can simply say pass. Okay, if you put pass, then you can have an empty block without any contents. Okay, and that will not give you any error. Okay, so let's try it out. So this is not the complete program, this is just I'm implementing only the not a leap year part. Okay, so let's run this and see what happens. So it is waiting for an year. So let's say 1567. Okay, so this is the year. Press enter. You can see I'm getting not a leap year. Okay, so let's run it again. 2000, and I get no output because it went into the if statement. Okay, so if में तो अभी तक हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है. So चलो अभी लिखते हैं. Right, so let's look at the next condition. So next में if it is divisible by 4, मतलब if के अंदर अब मुझे next चीज चेक करना है 100 से divisible है कि नहीं. Okay, so that is what I want to check. So let's put another if y mod
100 is equal to 0. ठीक है. So again, y mod 100 equal to 0, right? So अभी description में देखते हैं, अगर ऐसा है तो not by 100 है तो वो लीप ईयर है. ठीक है. So not by 100 that means if में आएगा कि else में आएगा. ये क्या बोल रहा है, not is not divisible by 100, right? तो ये if में आएगा कि else में आएगा. else में आएगा. Perfect. So now in the else I am going to say print okay, and what do I have to print? I have to print is a, it's a leap year, right? So leap year print करना है तो मुझे ऐसे print करना है. तो I will just copy that statement and put double quotes, paste it and put F, and instead of 2000 I'm going to put curly braces and Y. Okay, so save it. Now again, will this run right now? If I want to run this partially, can I run this? No, because the if statement is empty. Okay, I cannot have an empty if, right? So I can do pass, right? तो ऐसे करने के बाद अब मैं इसको चला सकता हूँ, right? So if I run this, let's say 2002, let's enter. It is not a leap year, right? So let's run it again. 2004. तो 2004 is a leap year. So ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. Let's run it one more time. Year 2000. So when I put year 2000, it goes to this particular pass statement. Okay, so ये pass में चले गया और यहाँ पे मुझे अभी next condition check करना है. ठीक है, so let's see what is the last condition. So the last condition is if it is not divisible by 400, then it is not a leap year. Okay, so if it is divisible by 100 and not by 400, so यहाँ पे क्या है, it is the year is divisible by 100 and not by 400. Okay, so that means divisible by 100 वाला पार्ट तो ये हो गया, और ये पास के अंदर मुझे ये भी चेक करना है कि वो divisible by 400 है कि नहीं. So I will take another if is y mod 400 is equal to 0, right? Or else, right? अब मेरे पास दो है. अब यहाँ पे अगर divisible by not by 400 है, then it is not a leap year. Okay, so not by 400 है तो it is not a leap year, right? So I will copy this, and not मतलब यहाँ पे आ गया, right? Not divisible else वाले पार्ट में आ गया और divisible इसमें आ गया. ठीक है, okay, so I think that is it. So now if I try to run this, so year 2000 is a leap year. Okay, so this is how you can write this. Now task number 12 is very easy. Okay, so here you will have to use a little bit of technique over here. Okay, so first of all, the thing that we are doing over here is we are trying to find out the percentage of marks that you have got, and based on that we are going to specify the class. Okay, so whether it is a distinction, first class, second class, pass class, or fail. Okay, so I have given you the criterias. So greater than 70 है, greater than equal to 70 है तो distinction है, greater than equal to 60 है तो first class है, greater than equal to 50 है तो second class है, greater than equal to 40 है तो pass class है, अगर उससे भी कम आया तो fail है. ठीक है, so these are the conditions. Now one more thing I have specified is
that each subject is of 80 marks. Okay, so that is one thing to note. And the marks I am giving you in this format. Okay, so ये format में मैंने marks दिए हैं. तो आपको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसको रीड करना है, इनपुट लेना है. Then you have to convert all these things into int. Okay, so because these numbers are in int, so convert all these things into int. Then you have to find out what is the total marks. नहीं, out of marks कैसे find करोगे? टोटल तो सम से मिलेगा, वो राइट है. आउट ऑफ 6 into 80. 6 into 80, बट जरूरी थोड़ी है 6 ही रहेंगे, कुछ भी हो सकता है. एक एक केस में हो सकता है 5 सब्जेक्ट्स रहे, एक केस में हो सकता है 3 सब्जेक्ट्स रहे, राइट? क्योंकि टेस्ट केसेस चेंज होने वाले हैं, राइट? तो वो कैसे करोगे? हाउ डिड यू फाइंड आउट इट इज 6 into 80? 6 कहाँ से मिला आपको? So 80 into number of inputs, marks which are input. Yes, that is correct. So 80 into number of elements. Okay, so number of elements इसके अंदर कितने हैं, right? तो वो number of elements find करने का function क्या है? So alien, Alien. Perfect. So I think now you can try it, right? So next topic, the very important topic, and in fact all our programs from now onwards will be having this. Okay, so let's begin. So we are going to start with two things. First is the while loop, and the second one is the for loop. Okay, for loop is much more important, so I'm going to cover it once you understand while loop. Okay, so now when do we use a while loop and when do we use a for loop? So if you have a specific number of times you want to run a particular loop, that means if you have a condition based on which you have to run a loop, then you will go for while loop. Okay, and if you just want to iterate over a list or a tuple or a string or anything, you just want to iterate, मतलब जितने elements है उतने के ऊपर कुछ तो काम करना है, then you usually go for a for loop. Okay, so let me show you first the while loop. Okay, so to take first, let me show you the syntax. So the while loop syntax is while, okay, then an expression. Okay, so this will be an expression. This expression, again, like if statement, it has to be either true or false. Okay, so it should be true or false like an expression. Okay, and there should be a colon, and as you already know, whenever there is a colon means a block is starting. Okay, so when I press enter, you can see a new block starts. So now if I do print and let's say hello, so you can see I'm printing hello, right? And now this expression I have to check. Okay, so what this expression should be is based on your program. Okay, but now the thing is, what is this expression? So when does this print command run? Whenever the while loop is true. Whenever the while loop is true, this whatever is inside the block will run. Simple. Okay, so ये expression जब तक true रहेगा तब तक ये जो भी contents रहेंगे वो run होंगे. ठीक है, so let me show you. So if I put true, मैंने forcefully इसको हमेशा true कर दिया, तो क्या होगा? ये हमेशा रन होते रहेगा. ठीक है, so let me show you. And if I run this, you can see continuous चल ही रहा है, stop होने का नाम ही नहीं ले रहा है, right? So now to stop it, I will go over here and stop. ठीक है, तो इससे मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया. बट दिस इज द वेरी रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग इट. डायरेक्टली ट्रू नॉर्मली हम लोग कभी नहीं करते. ठीक है, सो यहाँ पे कोई कंडीशन डालते, राइट? सो कंडीशन कैसे डालते? सो कंडीशन डालने के लिए you have to have some sort of a variable which you are going to check for something. Okay, so let's, for example, now that will depend completely on the application. Okay, so let's suppose I want to print table of 2. Okay, so table of 2 matlab something like this: 2 into 2 is equal to 4.
ठीक है. सो 1 से चालू होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2 इंटू 2, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. सो नेक्स्ट रहेगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. ओके, सो मुझे ऐसे 10 तक प्रिंट करना है, राइट. सो जस्ट लुक एट इट, इसमें कोई काउंटर जैसा कुछ है क्या, राइट. तो जब भी आपको ऐसा कभी भी कुछ भी प्रिंट करना रहेगा तो यू कैन चेक फॉर समथिंग विच इज लाइक अ काउंटर, राइट. सो इस केस में ये 2 तो फिक्स्ड है, राइट. और ये प्रोडक्ट भी फिक्स्ड है बिकॉज जो भी ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है. ओनली थिंग चेंजिंग इज दिस, and this is incrementing always by 1, right. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right. So इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा काउंट. ओके, लेट्स टेक इट काउंट एंड सेट इट टू 1. ओके, सो मैं 1 से चालू कर रहा हूँ, काउंट इक्वल टू 1. ओके, और अब मुझे ये कब तक चलाना है उसके ऊपर मैं ये कंडीशन डालने वाला हूँ, ठीक है. सो लेट्स पुट अ कंडीशन, काउंट लेस देन और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है. तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, काउंट 1 से चालू कर रहा हूँ और ये कब तक ट्रू रहेगा, जब तक वो 10 तक नहीं पहुंचता, ठीक है. तो पहले काउंट 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 तक जाएगा. जैसे ही 11 होगा ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है. तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब व्हाइल लूप आपका बंद, ठीक है. जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये चलता ही रहेगा, चलते रहेगा. सॉरी. सो ये तो ठीक है. सो नाउ शुड आई रन दिस और इज देयर समथिंग मिसिंग? So count increment होना चाहिए ना. बराबर, वेरी गुड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैंने वो नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो यू कैन सी अगेन इनफाइनाइट लूप. व्हाई? बिकॉज काउंट तो हमेशा 1 ही है और 1 तो हमेशा लेस देन 10 रहेगा, राइट. तो ये हमेशा हेलो 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 प्रिंट कर रहा है, राइट. सो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट. ओके, सो आई हैव टू, yeah, so I will just do count and how to increment plus equal to 1. Okay, so either like this or if you don't like this method then you can do manual method. Okay, तो आपको जो पसंद आया है वो करो, ठीक है. अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ये करो जैसे नॉर्मली करते, ठीक है. काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है. दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर दिस कमांड. ओके, सो ये हो गया इंक्रीमेंट. नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस. यू कैन सी वो एग्जैक्टली 10 टाइम रन करता है और रुक जाता है, राइट. सो यहां तक तो ठीक है. अब मुझे ये फॉर्मेट में प्रिंट करना है, राइट. सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मेट. सो द फॉर्मेट दैट वी वांट इज 2 into 2 or let's say 1 is equal to 2. ओके, सो ये फॉर्मेट है. अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, ठीक है. तो मैं पहले f डालता हूं और यहां पे डालता हूं इंस्टेड ऑफ 1 आई विल पुट काउंट, राइट. सो इतना पहले रन करके देखते. रन, यू कैन सी आई एम गेटिंग 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 2, 2 into 3 equal to 2, बिकॉज हम लोगों ने सेकेंड वाला पार्ट अभी तक चेंज किया नहीं है, राइट. सो ये यहाँ तक ठीक है, 10 तक आ रहा है, परफेक्ट. अब इसको भी चेंज कर देते हैं, ये रहेगा 2 into काउंट, बराबर, क्योंकि 2 तो अपना फिक्स्ड है, राइट. 2 का टेबल चाहिए तो 2 ही रहेगा ना. सो 2 into काउंट. Okay, so let's run this. You get the result. Okay, so 2 into 1, perfect. So I'm getting a 2 ka table. Okay, now can I modify this to get table of any number? Can I modify this program to get the table of any number? मतलब मैं यूजर से इनपुट लूंगा कौन सा टेबल चाहिए आपको और उसका टेबल का आउटपुट मिलेगा मुझे, ऐसा कर सकता हूं मैं?
यस सर। कैसे करना है? व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? सर वो टू के जगह पर इनपुट डालेंगे, मीन्स एक वेरिएबल Yeah, अटैच करके so सर I हम will, सभी। let's say I will take n, I will take input. ठीक है, इतना काफी है? So इंटीजर integer बनाए। input चाहिए. हाँ, इंट करना पड़ेगा मुझे, इंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? अब ये n को मुझे यहाँ पे सब रिप्लेस भी तो करना है, राइट? तो मैं ये फर्स्ट आऊंगा, यहाँ पे n डालूंगा और यहाँ पे n डालूंगा, राइट? So now this should work. Let's run it. So it is asking for, let's say 6 का table. Enter किया, I get 6 का table. Perfect. Okay. Okay. So this is while loop. Now while loop में इतना ही है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. You just have to figure out ये कंडीशन क्या रहेगा. आपने अगर ये कंडीशन फिगर आउट कर लिया, दैट्स इट, व्हाइल लूप डन, राइट? तो पूरा जो स्ट्रेटेजी रहता है वो व्हाइल लूप का कंडीशन फाइंड करने में ही लगता है, राइट? सो अभी एक दो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है? नाउ आई वांट टू प्रिंट 2 का टेबल फ्रॉम 6 टू 12. आई वांट टू प्रिंट 2 का टेबल फ्रॉम 6 टू 12. तो क्या करूं मैं, क्या कंडीशन डालूं? सर काउंट 6 हो जाएगा और कंडीशन तब 12 हो जाएगा। यस, सो काउंट 6 हो जाएगा, कंडीशन 12 हो जाएगा. परफेक्ट. ओके, बट मैं बोल रहा हूं आपको मुझे काउंट नहीं चेंज करना है, मुझे काउंट 1 ही रखना है, बट स्टिल मुझे 6 टू 12 भी करना है. तो क्या करेंगे? So दो कंडीशन यूज करने पड़ेंगे ना. क्या कंडीशन यूज करेंगे बताओ? So and यूज कर count greater than 6 and operator और फिर count less than 12. ओके, चलो वो ट्राई करके देखते हैं. सो काउंट ग्रेटर देन 6 एंड सो काउंट ग्रेटर देन 6, बराबर है ऐसे ही ना? So greater than 5 चाहिए और greater than equal to 6 चाहिए. ठीक है, ग्रेटर देन 5. सो काउंट इज ग्रेटर देन 5 एंड काउंट इज लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है, तभी मैं ये प्रिंट करूंगा, राइट ना? ऐसे ही ना? So guaranteed नहीं है, मतलब पूछ रहा हूँ मैं इसमें. हाँ, नहीं नहीं, दैट इज फाइन. अभी इसमें देखो क्या होगा, ठीक है? लेट्स ट्राई इट आउट. सो सबसे पहले इनपुट लिया आपने, n लिया, n मैंने 5 एंटर किया, तो 5 का टेबल चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे आया काउंट 1, राइट? सो लेट्स सी काउंट 1 में ये कंडीशन ट्रू होता है कि फॉल्स होता है. इज काउंट दैट इज 1 ग्रेटर देन 5? इज 1 ग्रेटर देन 5? No. नो. इज 1 लेस देन 12? Yes. यस. तो एक ट्रू, सॉरी एक फॉल्स है और एक ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू और एंड है बीच में, तो क्या होगा? फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा. False. तो मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ. और जब व्हाइल लूप फॉल्स होता है तो क्या होता है? एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? So while loop के बाहर आएगा ना और count प्लस होगा, तो फिर से सेकंड नंबर. काउंट प्लस होगा ही नहीं. अगर ये फॉल्स हो गया ना तो ये दोनों स्टेटमेंट रन नहीं होंगे. ये ट्रू रहेगा तो ही ये अंदर जाएगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट? दैट मीन्स व्हाट, इफ आई रन दिस राइट नाउ, while loop will never run. Okay, so that is the problem. So ये नहीं चलेगा, ये अपना लॉजिक सही नहीं है, right? So now what else can I do? So that is where a new technique comes into picture. So वो टेक्निक मैंने बताया नहीं था अभी तक, अब मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? So वो टेक्निक ये है कि there is something called as continue. Okay, so आप एक सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो कंटिन्यू करके. Okay, so let me show you.
सो अभी वो जो सेकेंड कंडीशन जो एंड में डाल रहे थे ना, वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे. सो लेट्स फर्स्ट चेक इफ. ओके, हाँ चलो इफ करते हैं. इफ काउंट is greater than, oh sorry, less than 6. Okay, if count is less than 6, I am going to do continue. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला लाइन करता क्या है, राइट? तो ये पता कर, मतलब ये समझने के लिए आपको ये समझना है कि कंटिन्यू करता क्या है, राइट? सो कंटिन्यू बेसिकली जब भी कोई भी व्हाइल लूप में कंटिन्यू आता है, उसका मतलब है skip remaining. Okay, skip the remaining contents and go to next condition. Okay, so मतलब क्या होगा, जैसे ही कंटिन्यू एनकाउंटर होगा, बाकी के जो भी लाइन बचे हैं वो रन नहीं करेगा, वो वापस ऊपर चले जाएगा, मतलब वापस रीस्टार्ट करेगा. ओके, वापस ऊपर जाएगा, राइट? सो ये क्या होगा, यहाँ से काउंट चेक करेगा, जो भी कंडीशन है वो चेक करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू निकला तो कंटिन्यू रन होगा, और कंटिन्यू जैसे रन होगा वापस ऊपर जाएगा, ये दोनों लाइन स्किप कर देगा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, सो इफ आई रन दिस, फर्स्ट इट इज आस्किंग फॉर इनपुट. लेट्स से मैंने 5 का टेबल चाहिए, मैंने एंटर किया. कैन यू सी ये यहाँ पे रुक गया है. ओके, क्यों रुक गया है? ये आगे नहीं बढ़ रहा है, अपना प्रोग्राम अटक गया. ठीक है, क्यों अटक गया? बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. काउंट इक्वल टू 1 है, राइट? यहाँ पे क्या है, काउंट लेस देन 12. यस, इट इज लेस देन 12, तो मतलब ये तो ट्रू है, राइट? और यहाँ पे आएगा, इफ में आएगा, राइट? इफ में काउंट लेस देन 6, 1 लेस देन 6, वो भी ट्रू है, राइट? तो ये कंटिन्यू पे आएगा. अब जब कंटिन्यू पे आएगा तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ये वापस इधर आएगा, इधर आएगा वापस. 1 लेस देन 12, हाँ. काउंट लेस देन 6, हाँ. वापस कंटिन्यू, फिर वापस ऊपर. तो मतलब आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, ये यहीं पे घूम रहा है. ठीक है, इसी रीजन में घूम रहा है. लेट मी जस्ट शो यू. सो यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है, फिर वापस घूम रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर वापस घूम रहा है, यहाँ पे आ रहा है. तो ये यहीं पे घूमते जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम करंटली. ओके, सो नेक्स्ट, तो मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ आपके हिसाब से? क्या प्रॉब्लम, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? सिंपल गड़बड़ किया था मैंने. क्या गड़बड़ किया, ये जो इंक्रीमेंट है ना, वो कभी आ ही नहीं रहा है, राइट? सो वो इंक्रीमेंट को मेरे को सिर्फ ऊपर लेना है. ठीक है, अगर मैंने इसको ऊपर ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तब देखो हर आइट्रेशन के बाद, अब देखो वो जो लूप हो रहा है ना, यहाँ से आता है, ये जब नीचे जाता है तभी इंक्रीमेंट होके जाता है, राइट? सो ये इंक्रीमेंट होगा. सो फर्स्ट लूप में 1 का 2 हो गया, फिर वापिस गया, नेक्स्ट लूप में 2 का 3 हो गया, फिर नेक्स्ट लूप में 3 का 4 हो गया, फिर 4 का 5 हो गया, फिर 5 का 6 हो गया. अब जब 6 होगा तब ये जो इफ स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, राइट? उसके बाद वो कंटिन्यू रन नहीं होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, तब समझ में आएगा. ठीक है, सो ये कंटिन्यू का मतलब इतना ही है, कंटिन्यू के बाद कुछ भी लिखा रहेगा आपने, अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाकी का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, इट विल स्किप एंड गो बैक. ओके, सो लेट्स रन दिस. लेट्स पुट 5 एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग फ्रॉम 6 एंट्री. 1 से नहीं आ रहा है, 6 से चालू हो रहा है और 13 तक जा रहा है, बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन होना चाहिए था. ठीक है, सो लेट्स पुट 5 अगेन एंड आई गेट टिल 12. परफेक्ट. ओके, सो ये तो हो गया. ठीक है, कंटिन्यू डन. ओके, सो whenever based on some condition you want to skip a loop, okay, skip an iteration, you will use continue. Okay, now if you want to stop an iteration, okay, so if you want to stop a while loop, then what to do? So that is when you do break. break.
राइट. सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ा सा और same program, everything is going to be same, but instead of doing checking condition over here, I will forcefully make it true. Okay. और मैं आपको तो पता है, अगर इस आपने इसको फोर्सफुली ट्रू कर दिया तो ये इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, राइट. तो मुझे इसको ब्रेक करने का मतलब, अगर आपने इसको फोर्सफुली ट्रू किया है तो 110% अंदर कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा. सो लेट अस सी. सो लेट्स कम आफ्टर प्रिंट, and here I'm going to say if count is greater than 12. Okay, if count is greater than 12, then I'm going to break. ठीक है, मतलब अगर काउंट, मतलब काउंट तो हर आइट्रेशन में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट. तो अगर वो 12 के ऊपर गया तो आपको ब्रेक करना है. ठीक है. सो इफ काउंट इज ग्रेटर देन 12 देन ब्रेक. ठीक है. तो ये देखो, ये मैंने इफ लिया है स्किप करने के लिए, और ये मैंने इफ लिया है ये वाइल लूप को बंद करने के लिए. ठीक है. तो ये ब्रेक और कंटिन्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो ये कब कैसे यूज करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. ओके. नाउ एक्चुअली यहाँ पे ये ब्रेक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते थे, राइट. बट जस्ट टू शो यू आई हैव डन दिस. सो आई हैव मेड दिस ट्रू forcefully. I am making it true, then I can break it inside also. ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि while loop मतलब कंडीशन से ही ब्रेक हो सकता है, आप अंदर भी जाके ब्रेक कर सकते हो कहीं भी. ओके. सो नाउ इफ आई रन दिस I should get the same result. Okay. So yeah, so एक एक्स्ट्रा जा रहा है, 13 तक जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 तक लेके जाते. ठीक है. सो लेट्स रन दिस. सो 6 का टेबल लेते हैं, तो आई एम गेटिंग फ्रॉम 6 till 12. परफेक्ट. ओके. ओके. सो दिस इज while loop. ओके. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लूप. सो while loop हो गया अपना. Again, one more thing left. In any loop, in fact in any block element मतलब जहां पे भी कोलन आता हो, और उसके वो कोलन आने के बाद अगर आपको यहाँ पे एक empty while loop करना है, you cannot have an empty while loop. That is the most important thing. Okay. You cannot have an empty if, you cannot have an empty else, you cannot have an empty while loop, empty for loop. कुछ भी empty नहीं कर सकते आप. ठीक है. अगर आपको empty कुछ भी करना है तो क्या करना पड़ता है, पास. वेरी गुड. सो कभी भी आपको कुछ भी empty ब्लॉक चाहिए, अगर आपको ब्लॉक empty चाहिए तो पास डालना पड़ता है. ठीक है. यूजुअली हम लोग कभी ऐसा करते नहीं है, बट नॉर्मली हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वी क्विकली राइट द कोड, एंड अपने को याद रहता है कि हाँ एक while लूप आएगा यहाँ पे, बट अंदर क्या लिखना है वो अपने को याद नहीं रहता, राइट. मतलब तभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया रहता. तो व्हाट वी डू इज वी जस्ट राइट while लूप एंड पास. ठीक है. ताकि एरर ना दे, राइट. सो ऐसा यूजुअली कभी काम में नहीं आता पास, बट यू नो इट इज गुड टू नो दैट दिस फीचर इज देयर. ओके. सो यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी दिस थिंग. ओके. ये जो पास है ना, ये बहुत काम में आने वाला है जब हम लोग फंक्शंस पे जाएंगे नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर. ओके. ओके. So that's it. So now we can start with the very important loop, that is the for loop. Okay. But before we start for loop, I need you to understand another function, that is the range function. Okay. So let me show you that first. So let's print. Okay. So let's print range function. Okay. So this range function is very important. इनफैक्ट मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए. रेंज. ठीक है. रेंज ऑफ 5. ओके. एंड लेट्स प्रिंट 8. ओके. सो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, रेंज ऑफ 5. अब ये रेंज क्या करता है वो अभी आपको समझ में आएगा. लेट्स रन दिस.
and when I run this, I get something like this, range 0 to 5. This is useless, right? To get it a little more useful data, मतलब visually मुझे देखना है कि ये क्या देता है मुझे, तो मैं इसको list में convert करूंगा. So let's convert this range into list, and now you will see the beauty of this. So if I run this, can you see what has happened? So अगर आपको list बनाना है, मतलब dummy list बनाना है with some numbers, okay, that numbers is अगर आपने range 5 दिया तो आपने क्या बनाया, 0 to 4 लिस्ट बनाया, राइट. देयर आर एक्चुअली, ये जो आपने दिया है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हो, राइट. सो आपने क्या किया, रेंज ऑफ 5, रेंज 5 किया, मतलब इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू 1 लेस देन वॉट एवर इज द रेंज. ओके, सो यहाँ पे आपने क्या दिया, 5, तो 0 से चालू होगा और 4 तक जाएगा. ठीक है, अगर मैंने 15 दिया, रेंज ऑफ 15, तो कहां तक जाएगा, 0 टू 14. ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन क्या करता है, इट विल गिव यू अ लिस्ट, ओके, एंड इट विल क्रिएट अ लिस्ट फॉर यू यूजिंग ऑफ नंबर्स, ओके, इंक्रीमेंटिंग बाय 1. ओके, सो आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपको मतलब अभी हम लोग तो सेम हम लोग ने वहां पे किया था ना, वाइल लूप से जो किया था वही सेम हम लोग इधर करेंगे, राइट. सो लेट आई विल शो यू हाउ इजी इट विल बी यूजिंग फॉर लूप. सो रेंज का काम ये है टू क्रिएट लिस्ट. ओके, सो क्रिएट लिस्ट ऑफ नंबर्स. And now this range function is very powerful. This is not the only thing that range can do. It can also, मतलब हमेशा 0 से चालू होगा ऐसा नहीं है. अगर आपने दो नंबर्स दिया, 4,15 दिया, ठीक है, सो अगर आपने 4,15 दिया तो स्टार्ट होगा 4 से, एंड होगा, एंड हमेशा एक कम ही होता है. ठीक है, इतना याद रखना. तो अगर 4 से चालू हुआ, एंड हमेशा एक कम होगा. ठीक है, दैट इज 14 तक होगा. लेट्स रन दिस. You can see 4 to 14. Okay, so if you give two inputs, it will start and end. मतलब आप basically start and end दे रहे हो. और अगर आपने एक ही input दिया तो मतलब आपने start fix कर दिया 0, end आपने fix किया है जो भी आप नंबर दोगे वो. ठीक है, तो this is when you give two inputs. Okay, now if you give three inputs, okay, so let me show you 3 inputs. So this is by default 1. okay, so अगर आपने कुछ नहीं दिया ना, मतलब अगर आपने नहीं दिया कुछ भी तो by default 1 ही रहता है. बट अगर आपने 2 दिया, राइट, 2 दिया मतलब वो स्टेप साइज है. स्टेप साइज मतलब when you go from 4 to 15, how much should you increment? okay, so 4 के बाद क्या आना चाहिए. ठीक है, नॉर्मली इधर 1 रहता है. अगर आपने कुछ नहीं दिया ना तो 1 रहता है, मतलब 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसा, राइट. अगर आपने 2 दिया, दैट मीन्स 4 के साथ 2 ऐड करो, मतलब 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10, ऐसा, मतलब 2 2 से इंक्रीमेंट होगा. सो इफ आई रन दिस, यू कैन सी 4 6 8 40. ओके, now if I want now you can see right now I'm getting all even numbers, right. If I want odd numbers, what should I do? So +3 करोगे. +3 करूंगा. ओके, सो मैं +3 करूंगा तो 4 + 3 कितना होता है? 4 + 3 7, 7 + 3 4 तो सर इवन हो जाएगा ना. हाँ एग्जैक्टली, 4 इवन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ही इवन हो 4 जाएगा. को 5 कर सकते हैं ना, 5 कर हाँ, सकते हैं 4 को. दैट इज राइट. 4 को 5 करेंगे एंड काउंट क्या रहेगा, मतलब स्टेप साइज क्या रहेगा? सो 2 ही रहेगा, 2 हो राइट. जाएगा. 2 ही और रहेगा. ऑड चाहिए कि इवन चाहिए? स्टेप साइज तो हमेशा 2 ही रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग नंबर आपका चेंज होना चाहिए, राइट. सो लेट्स रन दिस. आई गेट 5 7 9 11 13. ओके, और अगर मुझे इवन चाहिए तो मैं इसको 4 कर दूंगा और रन करूंगा, तो 4 6 8 10 12 14. परफेक्ट. ओके, सो इतना हो गया, राइट. तो हमें अभी 3 इनपुट वाला भी आता है, 2 इनपुट वाला भी आता है और सिंगल इनपुट वाला भी आता है.
अब मुझे क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। अभी तो मैंने इंक्रीमेंट किया है, अब मुझे डिक्रीमेंट वाला चाहिए, मतलब 14 12, मतलब 14 13 12 ऐसा चाहिए। तो कैसे करूंगा? -2। सर -2 15 सर करते हैं। 14 स्टार्टिंग आ जाएगा। हाँ वेरी गुड और वेरी सर गुड। 14 Okay। स्टार्टिंग और आ सर जाएगा, ये और 0 तक यहाँ जाएगा। पे समझो 0 डाल दिया मैंने, और -2 किया, डिक्रीमेंट बाय 2 किया, तो अपना काम बनना चाहिए, राइट। सो 14 12 10 8 6 4 2, परफेक्ट। ओके, 0 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 0 तक नहीं जाएगा, ठीक है। जो बीच वाला है या और द सेकेंड पैरामीटर जो भी है, वहां तक कभी नहीं जाएगा रेंज फंक्शन में, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग टू नोट। Okay, so I hope this part is clear. Range function is clear. Okay, so now we can look at for loop. Okay, so for is very very simple. So we will start with for. So for के लिए you will start with the keyword for, and then you want a variable name. Okay, any variable name will do. So let's take x, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम ले लो। तो मैंने x ले लिया, उसके बाद in डालना है, ओके, और उसके बाद एक लिस्ट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इट शुड बी आइदर अ लिस्ट और अ टपल और अ स्ट्रिंग और अ डिक्शनरी, ओके, समथिंग विच इज आइटरेबल। ओके, आइटरेबल मतलब क्या? जिसको मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, मतलब जिसका मैं वैल्यूज एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो वाला चीज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे कौन से चीज है, यू कैन यूज, you can put a list over here, you can put a tuple over here, you can even put a string over here, और थोड़ा सा डिक्शनरी थोड़ा सा अलग तरीके से देना है, बट दैट ऑल्सो वी विल सी। ओके, सो डिक्शनरी भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा एक अलग तरीका है उसका, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो दिस ए कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी अ टपल, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, ओके, एनीथिंग, right? So that is it. So that is how the for loop will work. Okay, so let's say we define a is equal to some list. Okay, so ये मेरा list है a, तो मैंने क्या किया, for x in a ये डाल दिया, right? अब मैं क्या कर सकता हूँ, this is the best part. So I can do print and I can print x, ठीक है। So let me show you. First I will run it and then I will explain you what is happening. Okay, so let's run this and you can see what is happening, right? So basically जब मैं ये चीज रन करता हूँ ना, for x in a, तो ये a जो है it should be a list or a tuple or a string, right? तो a का एक एक एलिमेंट for loop उठाता है, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट उठाएगा और x में स्टोर करेगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट उठाएगा, x में स्टोर करेगा, तो फर्स्ट आइट्रेशन में x का वैल्यू क्या रहेगा, 5। नेक्स्ट आइट्रेशन में x का वैल्यू रहेगा 6, नेक्स्ट आइट्रेशन में x का वैल्यू रहेगा 4, एंड सेकेंड लास्ट आइट्रेशन में 3, एंड द लास्ट आइट्रेशन में 4। ओके, सो हियर द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट काउंटर्स, कुछ इंक्रीमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितने एलिमेंट्स रहेंगे लिस्ट में उतनी बार आपका लूप चलेगा, इनफाइनाइट लूप होने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे, राइट? बिकॉज जितना आपका लिस्ट है उतने बार फॉर लूप रन होने वाला है, तो इनफाइनाइट कैसे होगा, राइट? सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फॉर लूप। ओके, सो नाउ once we know this, I can now what I'm going to do is I'm going to implement the same program that we did 2 ka table or n ka table using for loop. Okay, so let's see how to do that. Okay, so let's try this out. So for, let's take I, okay, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो आप, फॉर I in, नाउ इधर मुझे एक एरे चाहिए, जो एरे कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, लेट्स टेक इट ए, ओके, और वो ए को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट इट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सब चाहिए मुझे, राइट? अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट
एंड प्रिंट करने के बाद अपने को प्रिंट क्या करना है वो तो पता है, इट इज 2 into 1 is equal to 2. Okay, instead of 1, ठीक है, I will first put f over here so that I can replace variables, right? Instead of 1, अब मेरा 1 should be my count value, right? और count कहाँ पे आ रहा है, I में आ रहा है, because हर iteration में I में क्या रहेगा, पहले iteration में 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, ऐसा, right? So I is basically my count now. So I will replace this by I, और यहाँ पे मैं replace करूंगा 2 into I, right? That is it. So I have completed my program. If I run this, I get 2 into 1 equal to 2. मतलब यहाँ पे देखो ब्यूटी, देखो नो कंडीशन, नथिंग, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, राइट? वाइल लूप में कैसा आपको कंडीशन के बारे में सोचना पड़ता है कि कहाँ से चालू करना है, कहाँ से बंद करना है, राइट? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपने एक लिस्ट डिफाइन किया और उसके वैल्यूज को ये रन कर रहा है, राइट? अब और ब्यूटी देखो, ये लिस्ट को मैं रेंज से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? यस सर, यस। हाँ, कैसे करूँ? रेंज ऑफ क्या लिखूं यहाँ पे? 1 to 11. 1 to 11, वेरी गुड, 1 to 11, एंड दैट्स इट, मेरा काम बन गया। नाउ इनफैक्ट आई उसको कैन लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे ना सर? नहीं, वो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दिस, इट विल स्टिल वर्क, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? वो तो मैंने आपको प्रिंट करने के लिए वैसा दिखाया था, बट आप ये डायरेक्टली भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? ये वेरिएबल की भी एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? बट एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है? सो नाउ इफ आई रन दिस, you can see I get the exact same result without any counter, without any condition, nothing is there, right? So that's why everybody likes for loop a lot. Okay, for loop इसलिए पसंद है because of the range function, ठीक है? because अपने को काउंटर का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एनी डाउट्स? क्लियर है for loop? अच्छा सर, इसमें डिफॉल्ट में वो लिस्ट लेगा सर, 4 लिस्ट टपल्स एंड नहीं तो सर for नहीं, loop ऐसा डिफॉल्ट में default वो में कुछ भी नहीं लेगा, इट इज अ रेंज। ओके, सो अगर आप प्रिंट करोगे, आपने देखा ना रेंज ब्रैकेट में आता है, तो वो रेंज ही लेता है, बट उसको वो कास्ट करता है लिस्ट में। सो व्हेन यू डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, उसको कास्ट करता है लिस्ट में। ओके सर। तो आपने मतलब फिजिकली आपको वहां पे लिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं है। लिस्ट डालोगे तो भी चलेगा। इफ आई डू लिस्ट and if I run this, still works the same, okay? क्योंकि फॉर लूप वो वैसे भी करता ही है, तो ये इसके लिए हम लोग डालते ही नहीं है, इसको लिस्ट डालते ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक वैसे भी करता ही है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट प्रिंटिंग के टाइम वो नहीं करता है, इसके लिए मैंने प्रिंट जब किया था ना, तब मैंने किया था, राइट? प्रिंटिंग के टाइम में वो देखो, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो इफ आई प्रिंट range of 15, okay, if I do this, if I run this, you can see it is printing like this, ठीक है? वो रेंज नहीं, वो लिस्ट नहीं प्रिंट कर रहा है, वो सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई टू सी, टू विजुअलाइज दिस, आई हैड टू मेक लिस्ट, ठीक है? सो इफ आई रन दिस, आई गेट अ लिस्ट नाउ, ओके? अगर यही चीज को मुझे टपल बनाना है, अगर यही चीज को टपल बनाना है, तो मैंने ऐसा रन कर दिया, तो ये टपल बन गया, राइट? सो यू कैन कन्वर्ट रेंज टू एनीथिंग यू वांट, ओके? आप टपल बना सकते हो, आपको सेट बनाना है, सेट बना दो। सेट बनाने का मतलब नहीं है, बट यू नो, बनाना तो बना दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? ओके, सो
Okay, so now we can move on to the task. Last 3 tasks for this chapter. So task number 13 is the first task, and I think it is a very simple task. फैक्टोरियल, ठीक है, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो फैक्टोरियल तो आना ही है कि नहीं? तो दैट इज द फर्स्ट प्रोग्राम, web to find factorial of the entered number. Okay, so basically I am going to give you a number, any number, और आपको उसका फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है? सबको पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? सो इफ आई से 3, उसका फैक्टोरियल क्या रहेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? 6 का फैक्टोरियल क्या रहेगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? So that is how factorial you have to. So basically what I want is I want a factorial, right? So first let us take the input. Okay, so let's say n is equal to input, and that input should be converted to int. Okay, तो ये हो गया पहला काम. अब मुझे for loop रन करना है. I like for loop more, so I will be using for loop, right? So let's run for loop. For loop, let's take x in. Now I want to run this for loop for certain values. Okay, so what are those values? So that's, those values are going to be n, from n to 0, right? Because if I go till 0 means I'm not using 0, I will be going till 1. Okay, so n to 0 मतलब मैं 0 तक नहीं जाता हूँ, मैं 1 तक ही जाता हूँ, ठीक है? एंड आई एम गोइंग टू डू -1, मतलब मैं उल्टा जा रहा हूँ बेसिकली. n से लेकर, अगर मैंने n5 लिया तो ये क्या करेगा? ये जाएगा 5, फिर 4, फिर 3, सॉरी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक ही जाएगा, 0 तक नहीं जाएगा, बिकॉज जो भी सेकेंड वैल्यू रहता है वहां तक नहीं जाता है, एक कम जाता है, राइट? सो ये हो गया, ये अपना हो गया क्या? ये अपना रेंज हो गया, राइट? नाउ आई हैव टू यूज दिस, राइट? To use this I have to have a variable, let's call it fact, okay? And I have to start with some value, okay? So I have, because it is multiplication, I cannot start it with 0, because 0 into 0, anything will give you always 0, right? So I have to start with 1. Multiplication hai iske liye, right? Now I'm going to say fact is multiply equal to x. Okay, either this or you can also say this. Okay, so जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज करो, fact into x. Okay, so whatever is there in factorial into x and then save it inside factorial. Okay, so let's use this for, okay, so ये हो गया अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट. अभी सिर्फ क्या करना है? प्रिंट करना है. सो प्रिंटिंग शुड बी आउटसाइड. ओके, सो आउटसाइड द फॉर लूप. मैं अगर टैब मार के करूंगा तो वो फॉर लूप के अंदर हो जाएगा, राइट? वो नहीं चाहिए मुझे आउटसाइड चाहिए, राइट? सो मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे और अपना रिजल्ट स्टोर्ड है फैक्ट में. ओके, सो दैट्स इट. सो दिस शुड गिव मी माय आउटपुट. इफ आई रन 6 आई गेट 720. Is it correct? I don't know. Let's run for 5 and see. Yeah, it is correct. For 5 it is 120. And task number 14 is very special, I would say. Okay, मतलब बहुत ही tricky है. So basically you have to find the second largest number. ठीक है, you have to find the second largest number. Okay, I will show you a simple trick. ठीक है, let's take a list. Okay, so 1 3 4 5 6 6 4. Okay, so ये मेरा लिस्ट है. सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपको क्लियरली समझ में आया रहेगा अभी तक कि 4 है, राइट? नहीं, 5 है.
5 मेरा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। ये तो देख के अपने को समझ में आता है, बट प्रोग्राम को कैसे समझ में आएगा, राइट? सो फॉर दैट सिंपल है एकदम, you will simply do, let's first remove this 2 6, okay? So simple, क्या करोगे, b is equal to sorted a, okay? तो मैंने a को सॉर्ट कर दिया, तो अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं क्या आता है, प्रिंट b. so if I run this I am getting 1 2 3 4 5 6. अब मेरा सेकेंड लार्जेस्ट क्या रहेगा, कैसे एक्सेस करूं सेकेंड लार्जेस्ट? सर वो प्रिंट ब्रैकेट में ए लिस्ट का, हाँ सर, बी ब्रैकेट में मैं क्या डालूं, लेंथ -1 सर, वो चलेगा? लेंथ -1 भी चलेगा, will do, but in Python there is another option. 0 is this, right? This is 0 index, this is 1 index, 2 3 4 5, right? बट अगर यहां से आप उल्टा चालू करोगे तो ये -1 इंडेक्स हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ऐसा, राइट? सो अगर मुझे लास्ट वाला लेना है तो -1 करूंगा, अगर सेकेंड लास्ट वाला लेना है तो मैं क्या करूंगा, -2, minus या सो मेरा 5 आ गया, परफेक्ट, ओके। यहां तक तो ठीक है, बट प्रॉब्लम इज व्हेन आई हैव मल्टीपल सिक्सेस, ठीक है। अगर मेरा मल्टीपल सिक्सेस रहेंगे, मतलब लार्जेस्ट नंबर मल्टीपल टाइम्स है, तो क्या होगा, इफ आई सॉर्ट इट, लेट्स सॉर्ट इट एंड रन, दिख रहा है मैंने सॉर्ट किया तो 6 2 बार आया लास्ट में। अगर मैं -2 करूंगा तो मेरा तो 6 ही आएगा वापस, लार्जेस्ट नंबर ही वापस आया, तो क्या करोगे? सर आपने वो बताया था ना, टपल या सेट में कुछ रिपीटेड वैल्यूज नहीं आती। वेरी गुड, वेरी दोनों गुड, में यही मैं बताना चाहता था कि वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सेट, ओके। सेट में कन्वर्ट किया तो क्या होता है, all duplicate values will be removed, okay? So let's do set of sorted, ठीक है। set of sorted किया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डुप्लीकेट सब उड़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू प्रिंट इट, यू कैन सी जो 2 6 थे वो गायब हो गए, राइट? बट नाउ द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट एक्सेस -1 और -2, ठीक है। क्यों? इफ आई रन दिस आई गेट एरर, क्यों नहीं कर सकता मैं एक्सेस? सेट है सर, हाँ। रैंडम रहता ना सर, रैंडम रहता ना। सेट को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट लिस्ट वापस लिस्ट। इसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम, आई विल शो यू, बट लेट्स रन इट। सो व्हेन आई रन दिस, कैन यू सी इन व्हाट सीक्वेंस आई एम गेटिंग? क्या ये सही सीक्वेंस है? 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ पे तो सही है, राइट? बट आप कोई और पीसी में रन करोगे, मतलब मूडल में रन करोगे, तो हो सकता है कि अलग अलग सीक्वेंस में आए, राइट? मतलब हो सकता है 3 4 1 2 5 6 आए, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट? व्हाई? बिकॉज सेट का डेफिनेशन क्या है, इट इज अनऑर्डर्ड, राइट? सो व्हेन वी से इट इज अनऑर्डर्ड, तो ये कोई ऑर्डर में आने नहीं वाला है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लकीली अपने सिस्टम में, मतलब मेरे सिस्टम में वो ऑर्डर में आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिस्टम में आप ट्राई करोगे वो ऑर्डर में आएगा। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्हाट शुड आई डू? सर स्टार्टिंग ही सेट करके बाद में सॉर्टेड करेगा तो हो जाएगा ना सर? वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो सॉर्टेड बाद में करो, पहले मत करो, ठीक है। पहले सेट करो तो डुप्लीकेट निकल गया, फिर उसको लिस्ट किया तो उसका लिस्ट बन गया, उसके बाद उसको मैं सॉर्टेड करूंगा, तो अब मेरा जो भी बी आएगा वो परफेक्ट आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी सिस्टम में जाओगे आपका सॉर्टेड ही रहेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सिंपली डू -2
and you should get the result 5, right? जो सेकेंड लार्जेस्ट है वही हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया। सर लेन -1 करो ना सर, हाँ, लेंथ -1 वैसा करके बताना से सर। भी होगा। Then सो लेंथ ऑफ बी -1, नहीं -2 करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बराबर ना? लेंथ, हाँ -2 करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ -1 क्या आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट आएगा ना। एम आई राइट? लेट्स ट्राई। yes, इफ आई रन दिस आई गेट 6, ठीक है? तो अपने को -2 करोगे तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है? 5 आया, ठीक है? ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो फाइन। बट जब पाइथन ने आपको डायरेक्ट -2 का ऑप्शन दिया है तो आपको लेंथ -2 करने की क्या जरूरत है कि नहीं? द लास्ट वन इज वेरी सिंपल, मतलब सबसे इजीएस्ट है ये, इज टू प्रिंट अ पैटर्न, ठीक है? तो मैं एक नंबर दूंगा आपको 5 और आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है? मतलब स्टार्स प्रिंट करने, ठीक है? एनी आइडिया हाउ वी कैन डू दैट? पहले तो ये स्टार कैसे आएंगे, इसका आइडिया है? सर वो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लेते थे वैसा करना पड़ेगा। नहीं, पहले से मुझे एक लाइन में स्टार्स कैसे लाएंगे? वो है ना, आपने बोला था एक वेरिएबल में स्टार हाँ, कॉपी करो और बाद में लेट्स टेक अ सर वेरिएबल। पासवर्ड में बताया था। हाँ, राइट राइट राइट, वही लॉजिक सेम। सो ए लो और ए इंटू अगर 4 करोगे तो 4 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, बराबर? अगर 5 करोगे तो 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, राइट? मतलब ये स्टार के जगह में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है? सो ये यूज करना है, प्लस आपको फॉर लूप यूज करना है, ठीक है? फॉर लूप यूज करके आपको ये इतने टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है? मतलब अगर 5 बोला ना मैंने, तो फर्स्ट रो में 1 बार, 2 बार, 3 बार स्टार, 4 बार स्टार और 5 बार स्टार। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट, बट देयर इज वन मोर slight trick inside this. This should be right aligned, that is more important, right? सिर्फ स्टार प्रिंट करने से नहीं होगा, आपको राइट अलाइन भी करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? अगर ये मेरा स्टार है, इसको मुझे राइट अलाइन भी करना है, तो कैसे करूंगा? पहले तो मैं इसको कट करता हूँ और कोटेशन में डालता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करता हूँ, एंड आई डू दिस, राइट? इफ आई रन दिस आई गेट अ स्टार, राइट? अब मुझे इसका विड्थ फिक्स करना है, राइट? तो विड्थ फिक्स करना है तो मैं क्या करूंगा? जो भी मेरा ये कर्ली ब्रेसेस है उसके पहले आऊंगा, कोलन डालूंगा, राइट? एंड आफ्टर डूइंग कोलन आई विल से which what should be the size of my width size, okay? मतलब कितना width चाहिए? तो मैं let's suppose width सेट करता हूँ 5 का, ठीक है? 5 का मैंने width सेट किया, द फिक्स नंबर 5, और स्ट्रिंग भी 5 है तो कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट इफ आई डू दिस राइट अलाइन, ये वाले सिंबल से राइट अलाइन होगा, ठीक है? और इसका विड्थ मैंने 5 सेट किया। इफ आई रन दिस देयर विल बी नो डिफरेंस, बिकॉज ऑब्वियसली विड्थ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू विड्थ, तो कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं है, राइट? सो लेट्स इंक्रीज दिस टू लेट्स से 15, ओके? विड्थ को मैंने इंक्रीज किया। इफ आई नाउ रन दिस यू कैन सी राइट अलाइन हुआ ना, इतना जगह उसने छोड़ दिया और ये राइट अलाइन हो गया, राइट? तो यही चीज मुझे करना है, बट ये विड्थ जो है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब मैंने आपको ट्रिक बताया है कि ये कैसे करना है, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, एवरीथिंग इज हैविंग द सेम विड्थ, एंड द विड्थ इज हाउ मच? यू सी 1 2 3 4 5, सो द विड्थ इज 5 फिक्स्ड। यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 4 5, सब जगह 5 ही है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5, ओके? सो यहाँ पे 5 ही है, तो विड्थ यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5। बट दिस इज ट्रू फॉर विच?
फॉर इनपुट 5, मतलब अगर आपने इनपुट 5 लिया तो 5 का विड्थ रहेगा, बट अगर आपका अलग इनपुट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 इनपुट लिया है, तो यहाँ पे विड्थ क्या आना चाहिए, विड्थ भी 10 आना चाहिए, राइट। सो वो कैसे करोगे, तो ये विड्थ भी चेंज होना चाहिए based on input. Okay, so let's say I take n is equal to input, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर लूप वगैरह डाला नहीं है, वो फॉर लूप आपको डालना है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक सैंपल बता रहा हूँ। सो मैंने n डाला, तो वो n शुड बी द विड्थ ओवर हियर, ओके, मतलब जो भी n रहेगा वही विड्थ यहाँ पे आना चाहिए। 5 डाला तो 5, 10 डाला तो 10, तो वो कैसे लाऊंगा मैं। So if I do n, if I put n over here, will it work? Let's see if it works. So if I run, if I do 5 and press enter, you can see unknown format code n. Okay, so ये n डालने से नहीं बनने वाला, right? तो उसके जगह में आपको सिर्फ क्या करना है, whenever you want to put a variable inside this parameter also, मतलब यहाँ पे भी आपको कोई वेरिएबल डालना है तो उसको भी आप कर्ली ब्रेसेस में डालो, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है आपको, तो कहीं भी आपको अगर ये डालना है, मतलब n से रिप्लेस करना है, तो आपको यहाँ पे भी आपको कर्ली ब्रेसेस के बाद n डालना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। ओके, सो लेट मी शो यू, इफ आई रन दिस एंड पुट 8, नाउ यू कैन सी द विड्थ इज 8। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आई विल शो यू अनदर मेथड, अनदर ट्रिक दैट यू कैन डू द सेम थिंग, यू कैन डू विथ a simpler method. Okay, so let's comment this out and I can do print, and instead of printing it directly, I'm going to use a function r just. Okay, क्या था फंक्शन r just, ये a डॉट आर जस्ट करना है, डायरेक्ट आर जस्ट नहीं करना है। इट्स अ स्ट्रिंग, जैसे हम लोग स्ट्रिंग डॉट अपर करते हैं, स्ट्रिंग डॉट लोअर करते हैं, वैसा, ठीक है। तो वैसे ही a डॉट आर जस्ट, मतलब जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा ना, उसके साथ आपको आर जस्ट करना है, राइट। सो आर जस्ट एंड हियर यू कैन गिव द नंबर, सो नंबर इज n, ठीक है। कितना आपको विड्थ चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ डूइंग सच the complicated expression, you can do this. Okay, and a को आप डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, जितनी बार भी आपको रिपीट करना है वो, ठीक है। सो नाउ इफ आई रन दिस, आई लेट्स पुट 7, सो आई गेट अ विड्थ ऑफ 7। ओके, तो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा इजी दिखता है, मतलब थोड़ा सा सिंपलर लगता है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया।